Respected Shri Harpreet Chhabra ji, Shri Surjit Sinha ji, the chairman from the district federations, MDs, CEOs, directors of the urban cooperative banks, and my dear participants, Namaskar. Indeed, it is honor to be the part of this summit which is going to address issues concerning urban cooperative banks. Let me remind you, India is changing. UPI does 18 billion transactions in a month. FinCoTech provides loan within 3 minutes. Despite all this, more than 68% believes in you. Because it is because of the trust which you have reposed on them. And this is a large segment which we must retain. If we see the figures of 31st March 2025, I would appreciate the urban cooperative banks that they're having a deposit base of 5.84 lakh crore, which is higher than that of the state cooperative banks and the central cooperative banks, which is really a strength of the urban cooperative banks. This is a proud moment for all of us that you are having a very strong deposit base. And as far as the loan and advances is concerned, that is 3.7 lakh crores with a credit expansion of 6% annually. And your NPA is 6.2%. Net NPA ratio is 0.7%. PCR is 90.1%, which is highest. And the CRAR is above 12%. These are the remarkable achievements of the urban cooperative banks. That's why these are your strength. Now coming into the topic. The topic is remaining relevant with time. Now these are the two important words, remaining relevant with time. The need of the hour is to understand the meaning of relevance. And I understand the relevance starts with your customer only. In accordance with the time, if you have the customer, you have the business. If you do not have the customer, you do not have the business. So the answer is in your future, and it's the urban cooperative bank's DNA. We should focus on the customer only. Now I am remembering a book written by Pramod Batra, where he has described about the Lord Ganeshan's inspiration. Let me share with you to make this interaction more interesting. भगवान गणेश जी ने उस पुस्तक के माध्यम से यह कहा गया, The Lord Ganeshan's big had inspired us to think big and think profitably. भगवान गणेश जी कहते हैं कि ये जो मैंने आपको चौड़ा माथा दिया है, ये किस लिए दिया है कि आपकी सोच बड़ी हो और लाभदायक हो. अब प्रश्न आता है कि सोच क्या है. उस पुस्तक में यह वर्णन किया गया है, बड़ी सोच का अभिप्राय सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच का के बीच में आप सब लोगों के अंदर डिफरेंस करने की कला और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग. अगर आपकी सकारात्मक सोच है, निश्चित तौर पर आपकी संस्था, आपका बैंक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉर्ड्स गणेशन्स की इंस्पायरेशन कहती है. व्हेनेवर वी आर टेकिंग एनी पॉलिसी डिसीजंस, when we are framing any policy, when we are preparing the strategies, so please remember that we should apply the positivity in all respect. ये ज़रूरी नहीं है कि नकारात्मक सोच नहीं आएगी, नकारात्मक सोच आएगी, लेकिन आप
को ये जो चौड़ा माथा दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि आप विचार करें, आप एक निर्णय पे आए कि आपके लिए, आपकी संस्था के लिए और आपके परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को प्रगति पे ले जाए, जो आपकी संस्था को प्रगति पे ले जाए। उसी को अगर आप अमली जामा पहनाएंगे तो सक्सेस आपके साथ है। ये भगवान गणेश जी कहते हैं। भगवान गणेश जी ने, सिर्फ मैं 2-3 का वर्णन करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, वी हैव ए लिमिटेड टाइम। भगवान गणेश जी ने कहा है कि ये मैंने जो बड़े बड़े आपको कान दिए हैं, लॉर्ड गणेशंस ये कहते हैं कि जो बड़े कान दिए हैं ये किस लिए दिए हैं, ये सुनने के लिए दिए हैं, कि सुनने की क्षमता पैदा कीजिए। आपको अच्छा भी कहेगा, बुरा भी कहेगा कोई, ना जाने किस बुराई में क्या अच्छाई छुपी है जो आपके जीवन को, आपकी संस्था को ही परिवर्तित कर दे। इसलिए सुनने की क्षमता भी पैदा कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान गणेश जी ने ये भी कहा है कि ये जो छोटा मुंह मैंने दिया है, ये इसलिए दिया है कि स्पीक लेस एंड लिसन मोर, कि कम बोलो और अधिक सुनो। हम तो कहते हैं कि कम हम क्यों बोले हैं, क्योंकि मैं तो एजुकेशन सेक्टर से हूं। मैं तो कहता हूं कि मुझे तो सब कुछ ज्ञान आता है, मुझे फिजिक्स बता दो, केमिस्ट्री बता दो, वो बता दो, सो बता दो। लेकिन भगवान गणेश जी हमको ये सूचना, ये मार्गदर्शन हमें करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी विश्वसनीयता, उसका व्यक्तित्वपन वो ऊंचा रहता है, और जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो एक्सपोज हो जाता है। और जब एक्सपोज व्यक्ति हो जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी समाज में, संस्था में, वो उस लेवल पे नहीं रहती है जिस लेवल पे जो है वो अपेक्षा की जाती है। तो इसलिए भगवान गणेश जी के सत्र से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रारंभ करते हुए मुझे सिर्फ आपको रेलेवेंस के ऊपर बात करनी है कि रेलेवेंस का जो सही मायनों में मैं आज तक मतलब समझा हूं, वो ये समझा हूं कि अगर ग्राहक है तो व्यापार है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये दूसरा पहलू है। आपका जो फाइनेंशियल साउंडनेस की हम बात करते हैं वो उसके बाद का पहलू है। हम गवर्नेंस की बात करते हैं वो उसके बाद का पहलू है। ये सारे पहलू बाद में है। अगर ग्राहक है तो हम हैं। अगर आज मैंने ये सूट पहना है, इट इज बिकॉज ऑफ माई कस्टमर ओनली। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, इट बिकॉज ऑफ माई कस्टमर ओनली। इफ आई हैव एक्वायर्ड सम स्टेटस, इट इज बिकॉज ऑफ माई कस्टमर. Whatever I own, it is because of my customer only. We have to remember the slogan. That's why we have to please our customer. और जब हम उनको प्रसन्नता की बात करते हैं कि ग्राहक को प्रसन्न रखें, तो ग्राहक को प्रसन्न करने का अभिप्राय है कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आपका उत्पाद और आपकी सेल सर्विसेज होना आवश्यक है। अगर उनकी आवश्यकता के अनुसार आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है तो ही इज नॉट प्लीज्ड। तो इसलिए प्रसन्न हमें उसको इसलिए करना है क्योंकि हमारा रोजी रोटी, मकान और गाड़ी बंगला ये उस पर आश्रित है। तो इसलिए इस पे हमको फोकस करना है कि हमारा ग्राहक ही सर्वोसर्वा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने ये अध्ययन किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर फाइनेंशियल, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपकी वीकनेसेस भी होंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आपके पास थ्रेट्स भी होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्पाइट आपका डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ रहा है, क्रेडिट एक्सपेंशन बढ़ रहा है, एनपीएस आप कुछ सम एक्सटेंट आप उसको रिड्यूस करने में इम्प्रूव हुए हैं और सीआरआर को आप ऊपर ले जाने में सक्षम हुए हैं, लेकिन आपका कस्टमर बेस जो है वो डिक्रीज हुआ है। वो क्या हमको निर्देश देता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट नहीं रहा जिस ट्रस्ट के लिए हमको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का सुअवसर मिला है। द नीड ऑफ द आवर इज टू मेक द एनालिसिस ऑन दिस ऑल्सो, एंड आई विल ऑल्सो प्रोड्यूस वन फिगर बिफोर यू, बिफोर कंक्लूडिंग सर, सॉरी आई हैव टेकन much time.
द स्टडी सेज दैट वाई कस्टमर क्विट्स. बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स है. द नीड ऑफ द आवर इज टू इंट्रोस्पेक्ट नाउ. स्टडी ये कहती है कि 1% कस्टमर आपको इसलिए छोड़ता है कि वो मर जाता है. 3% कस्टमर आपको इसलिए छोड़ता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है. और 5% कस्टमर आपको इसलिए छोड़ता है कि उसके यार दोस्त करने की वजह से अगर मैं ब्रांच मैनेजर यहां आया हूं तो वो मैं अकाउंट्स इधर को ले आऊंगा. दिस स्टडी सेज. नेक्स्ट 9% कस्टमर आपको इसलिए छोड़ता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. बिकॉज वी हैव ए कंपटीटर इन द मार्केट. बड़ी मार्केट है, कंपटीटर ईयर बाई ईयर आपके बढ़ रहे हैं. और 14% कस्टमर आपको इसलिए छोड़ता है कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड है. As per his requirement, as per the need of the time, the product and the services are not upgraded. And I tell you, sir, again, 68% कस्टमर आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है. डिस्पाइट दैट, अगर उसको आप ऊंचा भी बोलेंगे, नीचा भी बोलेंगे, आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपकी नहीं होगा, कर्सी आप उसको नहीं दिखाएंगे, उसको डिस्प्लीज भी करेंगे, वो आपके बैंक को नहीं छोड़ना चाहता है. बिकॉज सेंटिमेंटली वो इस बैंक से जुड़ा हुआ है. सो दिस इज द मेजर चंक जिसको हमें रिटेन रखना है. और रिटेन रखने के साथ स्ट्रेटेजीज ये बनानी है कि हम किस सेगमेंट में से अपने कस्टमर को इंक्रीज करें. रिटेन के साथ साथ एनहांसमेंट ऑफ द कस्टमर. एनहांसमेंट ऑफ द कस्टमर, यू हैव ए 14% प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें इंप्रूवमेंट लाएं. कॉम्पिटिटिव का भी एक 9% का सेगमेंट है, उसको आप स्टडी करें. लेकिन हमारे कोऑपरेटिव बैंकों का सिर्फ दुख ये है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइंस होता है वो डिज़ाइन के अंदर फॉल्ट रहता है. और वो फॉल्ट मैं बड़े ओपन शब्दों में कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो रिमेंड इन दी मिनिस्ट्री. जब ये नई मिनिस्ट्री बनी थी तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर ऑल्सो फॉर 2 years. अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे, वो हमारे समय में हुआ. फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वी हैव मेड दी इलेक्शन अथॉरिटी ऑल्सो. हमने अम्बुड्समैन का ऑफिस एस्टेब्लिश किया, विच इज़ एस्टेब्लिश इन दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली. सो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग on each and every front, including the Reserve Bank of India, where you have been allowed to open the branch without approval. So many relaxation has been granted because they want relevancy with the time. So with these words, I am concluding. If you would have any question, I am open for that. And now I will request my colleagues to say some few words, and then we can deliberate, discuss, and if you have any question, we can resolve those issues also if you have.